Okay, a big hello and welcome back. So now with the new week starting, I hope you've enjoyed your weekend. वैसे जैसे मैं ऐसे कुछ कहता हूँ ना कि I hope you've enjoyed this or enjoyed that, तो generally उसके बाद एक list आ जाता है कि नहीं नहीं हमें तो ये करना पड़ा, हमें वो करना पड़ा, जिसके वजह से enjoyment तो दूर की बात है. ठीक है ना? But the general principle is that you have to enjoy life as it is. You can't postpone a theoretical enjoyment as such. कि चलो ठीक है अभी ये कर लेते हैं बाद में एंजॉय करेंगे, तो ये जनरली होता नहीं है. बिकॉज इफ दैट इज योर थॉट्स देन इट इज लाइक दैट मिराज इन अ डेजर्ट, है ना, कि चलो पानी थोड़ा सा आगे है, फिर वहां जब पहुंचते हैं तो लगता है पानी थोड़ा और आगे है, फिर वहां जब पहुंचते हैं तो पानी लगता है अभी भी थोड़ा और आगे ही है ना. तो देयरफॉर वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, कम व्हाट मे. Enjoy doesn't mean that you will always laugh, I mean, or smile. I mean, there might be moments of up and down, and a lot of things happens in our arena as such. But yes, we have to still master the art of being happy at whatever we are. Chalo. So, good morning messages have started coming. Garv, Deham, Harshit. Good morning, all of you, and let's again come back to our discussion on friction, isn't it? Actually, if you look at friction, that is probably the most interesting force because it has a lot of variety. बाकी सब फोर्सेस बड़े पैटर्न के अंदर है कि बस ये है वो फोर्स. फ्रिक्शन ऐसे नहीं है, फ्रिक्शन ये भी होता है, फ्रिक्शन वो भी होता है, फ्रिक्शन ऐसे भी होता है, फ्रिक्शन वैसे भी होता है. So that gives us a little bit of variety, and that is what probably makes it more interesting and at times maybe even a little bit more challenging as well, isn't it? चलो, with that backdrop, let's start. तो हमने ये फ्रिक्शन के बारे में उसने डिस्कस किए थे, तो मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा during walking, what is the direction of friction. So our first topic is direction of friction during walking. Walking के टाइम फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, ये सवाल है. Well, Dhruv Sharma says in the direction of walking. Deham says in the direction of walking. Yashu also says the same thing. Aryan says forward, parallel to our direction of motion in forward direction. Okay, these are more or less the answers. In the direction of walking, forward. Sir, please repeat the question. Question लिखा है, direction of friction during walking. Okay, the answer that is coming up is straightforward. Rupal, Som, Aum, Sania, सबने ही यही आंसर दे दिए, and that is in the direction of walking. Aryant ने थोड़ा सा explain करने की कोशिश किया कि when we push the ground backward at an angle, it gives us a forward reaction. Well, things are slightly more complex than what the answer has come out. So, like everybody is right in one sense, but not fully right in another sense. तो मैं कोई semantics नहीं कर रहा हूँ कि बस बातों में उलझा दूं, नहीं नहीं, मैं बहुत clear cut बता रहा हूँ. फिर से सुनो. On the whole, everybody is right, but there are nuances which one has to pick up. क्योंकि walking में 2 feet involved है. Now that's important. Okay, हर्षित लोहानी ने भी अभी आंसर दिए, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन ही बता रहे हैं. चलो ठीक, लेट मी पिक इट अप लाइक दिस. देखो वॉकिंग में 2 फीट इन्वॉल्व है और दोनों के रोल थोड़ा अलग अलग है. अगर मैं पूछूंगा ड्यूरिंग वॉकिंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, द आंसर कुड आल्सो बी बैकवर्ड्स. यू माइट से नहीं नहीं ये तो अब हम विश्वास नहीं करें, इस पे तो हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं. फ्रिक्शन इज द वन और इज द फोर्स व्हिच एक्चुअली हेल्प्स अस टू वॉक. यानी ये जो हम लोग चल रहे हैं ये फ्रिक्शन के वजह से ही चल पा रहे हैं. बिल्कुल बात सही है. तो मैंने अभी क्या बताया पहले कि ऑन द होल एवरीबॉडी इज राइट एंड एवरीबॉडी हियर विदाउट एन एक्सेप्शन. ठीक है ना. आर्यन हैज नाउ गिवन अ लिटिल बिट ऑफ चालाकी एंड दैट इज नहीं ग्राउंड पे बैकवर्ड्स नहीं. अभी रुको, मैं अपनी बात कर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ. इन व्हिच डायरेक्शन एम आई गोइंग टू रिसीव फ्रिक्शन ड्यूरिंग वॉकिंग, मैं उसके आंसर की बात कर रहा हूं, मैं और कुछ बात नहीं कर रहा. वो तो हमेशा पता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो अगर कोई फोर्स फॉरवर्ड है तो कोई बैकवर्ड भी होगा.
तो कहीं ना कहीं मैं जस्टिफाई तो कर दूंगा, मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ही ऊपर बात कर रहा हूँ. इफ आई एम द पर्सन हु इज वॉकिंग, आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस फ्रिक्शन इन बोथ डायरेक्शंस. दैट्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, इट इज जस्ट दैट यू टू अंडरस्टैंड व्हिच वन व्हेन. थोड़ा सा ध्यान से देखो. See, when I'm walking, let's say this is the way I walk. So I've gone ahead. So there are 2 feet involved. One is the hind feet, which is the one which is the pushing feet, I mean, and the other is the landing feet, जो पैर लैंड करता है. बिकॉज देखो वॉकिंग के टाइम क्या होता है, इफ यू लुक एट सिंपल वॉकिंग राइट नाउ, अब प्रॉब्लम क्या है, कैमरा तो नीचे की तरफ दिख नहीं रहा, क्लासरूम होता तो मैं दिखा भी देता. राइट नाउ क्या हो रहा है कि हाइंड फीट ग्राउंड पे है और फ्रंट फीट, ये वाला जो फ्रंट फीट है ये एक्चुअली हवा में है और ये आगे जाके ये हो गया, ये अब लैंडिंग फीट हो गया क्योंकि हवा में था, अभी जाके लैंड किया. थोड़ी देर बाद उल्टा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद यही वाला फीट हाइंड फीट हो जाएगा और राइट फीट ऊपर चला जाएगा और वो जाके लैंड करेगा. तो देखो इट्स अ कॉम्प्लेक्स मोशन है. एंड थोड़ा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है. इफ यू लुक एट दिस फीट, लेट्स से ड्यूरिंग वॉकिंग विद दिस व्हाट वी आर डूइंग. तो अभी सपोज ये फीट हवा में है, तो इस वक्त अगर मैं पूछूंगा फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन ऑन द पर्सन, बट दिस फीट after some time is going to land. After some time it is going to happen like this. At this moment the friction is actually backwards. ठीक है, और ऐसे हो बाकी तो जो है. This is the next moment. उसके नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट मोमेंट में ये हो जाएगा कि ये फीट ऐसे हो जाएगा और जो दूसरा फीट है ये अब हवा में आता है, एक्सेट्रा. उसके नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट मोमेंट में ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी. थोड़ी देर बाद क्या होगा, ए पीछे चला जाएगा और बी आगे हो जाएगा. This is what is going to happen. और उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, बी विल बिकम द लैंडिंग फीट एंड ए विल बिकम द हाइंड फीट. तो ये सारी सिचुएशन में अलग अलग टाइप का हो रहा है. जैसे इस वक्त अगर देखोगे तो हाइंड फीट में फ्रिक्शन आगे, ये तो हवा में, इसमें नो फ्रिक्शन. इस पे क्या हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन आगे F1 F2. अभी क्या हो रहा है, अभी देखो फ्रिक्शन जो है ना आगे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा. अब क्या हो गया, इसमें आगे हो गया. अब जब लैंडिंग कर रहे हैं तो ये पीछे हो जाएगा, ये आगे, यानी F1 F2. तो देयरफॉर ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो आगे पीछे बता रहे हो ये आगे हो गया इन द हाइंड फीट, बट द फीट व्हिच लैंड्स ऑन द ग्राउंड, उस थोड़ी देर के लिए जब लैंडिंग हुआ है थोड़ी देर के लिए उसका जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा बैकवर्ड्स. क्योंकि जरा लॉजिकली ये जो लैंड किया फ्रंट फीट, अगर मान लो फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन का जजमेंट कैसे करने के लिए बोला था, याद करके देखो कि ट्राई टू जज फ्रिक्शन डायरेक्शन बाय टेकिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस. तो जरा सोचो, अगर मान लो सपोज बाय चांस हाइंड फ्रंट फीट जो फ्रिक्शनलेस, सपोज करने क्या जाता तो क्या होगा, ये जैसे लैंड करेंगे तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा. लेकिन हम तो स्लिप नहीं कर रहे हैं ना. क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लैंड किया उसको रोक दिया फ्रिक्शन ने, इन व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन. देयरफॉर वॉकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. वॉकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. वॉकिंग का जो स्टार्ट होता है वो होता है फ्रिक्शन फॉरवर्ड, लेकिन वॉकिंग की जो एंड होता है उसमें होता है फ्रिक्शन बैकवर्ड. फिर वो जो एंड वाला फ्रिक्शन बैकवर्ड था वो हो जाता है फिर हाइंड फीट, फिर उस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो जाता है. यानी अगर एक पर्टिकुलर फीट देखता हूं, इफ यू लुक एट अ पर्टिकुलर फीट, ड्यूरिंग लैंडिंग एक्चुअली फ्रिक्शन इज बैकवर्ड्स, और थोड़ी देर बाद इस फीट का एंगल बदलता है, फिर थोड़ी देर बाद फीट का एंगल ये हो जाएगा, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड विद लेस वेल, और उसके थोड़ी देर बाद और एंगल हो जाएगा, अब जाके फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा. समझे ना? तो दैट्स हाउ इट हैपेंस. So if you look at one particular feet, ये देखो ये लैंड किया, अभी ये फ्रंट फीट है मान लो, तो ये लैंडिंग फीट हो गया, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ हुआ, अब ये वर्टिकल हुआ, अब फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होते होते अब जीरो हुआ, और अब ये प्रोपेलिंग फीट हो गया, यानी हाइंड फीट हो गया, अब जाके फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया. यानी अगर एक फीट को देखते हो
तो फ्रिक्शन का अगर ग्राफ बनाते हो विद डायरेक्शन, तो अप्रोक्सीमेट अगर ग्राफ बनाते हो with t, it would be somewhat like this. लैंडिंग के टाइम नेगेटिव, लेकिन रिलीज के टाइम यानी ऐसे, बाद में तो हवा में चला जाता ना वो, तो उतने वो जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन अगर मान लो ये होगी, तो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ फीट इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। मैं से लीनियर ग्राफ क्यों बना दिया, ये तो एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना है, तो वो तो देखो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेन इश्यू इसकी स्टार्ट नेगेटिव से होता है, बैकवर्ड से लेके फिर फॉरवर्ड होता है। तो देयरफॉर ओवरऑल ये जो हमारा बॉडी जा पा रहा है आगे, ये देखो फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, तो तुम बोलोगे ओवरऑल क्या होगा फिर? ओवरऑल इसलिए फॉरवर्ड हो पाता है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का कम ड्यूरेशन होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन का ज्यादा होता है, और इसी वजह से जो है हम लोग ओवरऑल आगे जा पाते। दैट इज द ट्रेंड है, ठीक है। चलो लेट्स पुट इट असाइड देन, लेट्स मूव ऑन। I hope you had a fair bit of idea about friction during walking. यही रनिंग में भी होता है, बस ये कि रनिंग में क्या होगा कि इसका ग्राफ और नीचे आ जाएगा, इसका ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो स्क्वीज करता है, क्योंकि वॉकिंग में तो काफी देर तक कांटेक्ट नहीं, देखो कांटेक्ट स्टार्ट हो चुका है, अगर स्लो मोशन में देखो तो अभी भी कांटेक्ट है, अभी भी कांटेक्ट है, अभी भी कांटेक्ट है, अभी भी कांटेक्ट है। ये जो दूसरा वाला फीट लैंड किया उसके बाद इसने कांटेक्ट छोड़ा, सो देखो द ड्यूरेशन इज मच मोर ड्यूरिंग वॉकिंग। यही चीज में क्या होगा, और स्ट्रांगली हो जाएगा, यानी और स्ट्रांगली बैकवर्ड और स्ट्रांगली फॉरवर्ड, ये होगा ड्यूरिंग रनिंग, और इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रनिंग के टाइम तो कांटेक्ट टाइम कम हो जाता है, कांटेक्ट टाइम कम हो जाएगा। सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ फीट इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। तो रनिंग के टाइम स्क्वीज हो जाएगा, इधर से ये नीचे आ जाएगा, इधर से ऊपर चला जाएगा, और ये भी स्क्वीज हो जाएगा, दैट्स ड्यूरिंग रनिंग। अदरवाइज द ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दिस व्हेन इट कम्स टू फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऑन द होल फॉरवर्ड ठीक है, but there is nuance in that. So that was about a little bit of theoretical discussion of friction variation in walking. ठीक है ना? Let's come back to our original discussion. आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या होगा लेट्स से हमने अगर इस पे फोर्स लगाया, angle of friction is rather coefficient of friction is about mu, which can be written as tan theta if you want, or let us say कुछ भी एंगल ले लो, ये थीटा एंगल लिया तो यानी ऑब्वियसली फिर ये फाई हो जाएगा, थीटा प्लस फाई 90 डिग्री। You have to find out the acceleration, और इस पे क्वेश्चन है मेरा, एंड दैट इज, ये काम करो, क्वेश्चन तो दूसरे तरीके स्टार्ट करते हैं, आज पुश नहीं करते, पहले पुल कर, ठीक है, म्यू दिया हुआ, फाइंड, वो वाला भी करेंगे, पहले उसके पहले थोड़ा और वो कर लेते हैं, फाइंड मिनिमम फोर्स required to just move the body. Find minimum force required to move the body. ये obviously frictionless surface नहीं है, friction है, और वो दिया हुआ है, mu is equal to tan theta. पिछले फ्रिक्शन के क्वेश्चन में सबने दिया था फॉरवर्ड, तो अभी लास्ट में एक और आंसर भी देख रहा हूं, अर्नव ने भी दिया, अर्नव गीत वर्मा, he has also given the same answer expectedly, ठीक है। चलो तो शुरू करो, this of mass m, friction coefficient given, find the minimum force required to move the body. अरियंत ने तुरंत एक आंसर दे दिया, that is mu mg by 1 plus under root of mu square, ठीक है। और कोई और कुछ? ओके, ध्रुव शर्मा ने भी आंसर दे दिया,
यशु अग्रवाल ने भी ये आंसर दिए। ये आंसर तब आता है जब ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। अदरवाइज जनरली क्या आता है, सेम करके दे दिया ओम पाठक ने भी। अदरवाइज क्या आता है जनरली कि हम लोग बोलते हैं कि म्यूएमजी दे, है ना। तो अगर मैं इंसिस्ट करूंगा, अगर मान लो मैं इंसिस्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल फोर्स दो, इन दैट केस तो म्यूएमजी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर ऐसे लगाओगे तो इसका तो मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यूएमजी है, तो जब तक ओवरकम ना करे तो हमारा काम तो चलेगा, है ना। तो इसलिए, लेकिन अगर मान लो नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर, तुम जैसे मर्जी करो, अगर ऐसे कर दो नो रेस्ट्रिक्शन, then what will happen? Then I can probably apply the force like this at certain angle, theta. ऐसे में फायदा है, नुकसान भी है। एंगल पे फोर्स लगाने का फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या होता है, देखो कि पूरा फोर्स तो लग ही नहीं रहा उसको पुल करने में, कुछ कंपोनेंट ही तो यूज हो रहा है ना उसको पुल करने में, ये हो गया नुकसान, यानी पूरा फोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। फायदा, फायदा क्या है कि इसके जो नॉर्मल वर्टिकल कंपोनेंट है, ये नॉर्मल फोर्स को रिड्यूस कर देगा। नॉर्मल फोर्स अगर रिड्यूस होता है तो उस केस में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, यानी जिस फोर्स को ओवरकम करके मुझे आगे बढ़ाना है वो फोर्स भी कम हो गया। अब ये तो डिपेंड करे नहीं कौन ज्यादा कम और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो देयरफॉर लेट मी टेक ए जनरल केस, सम थीटा एंगल, so this becomes f cos theta, this becomes f sin theta। तो क्योंकि mg तो है ही वेट है and this is the normal reaction, so on the verge of motion अगर होगा तो in that case क्या वही हो जाएगा mu n। so on the verge of relative motion या starting motion क्या हो जाएगा, this f cos theta will be just able to overcome, यानी इक्वल टू देके करेंगे mu n, और n क्या हो गया mg minus f sin is equal to mu into n, n मतलब हो गया mg minus f sin, ठीक है, that's the case। तो in that case f आ जाएगा mu mg by cos theta plus mu sin। वैसे इस कंटेक्स्ट में मैं एक जनरल चीज बताना चाहूंगा, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑलरेडी रेड इन योर मैथ्स, एंड दैट इज y इज इक्वल टू अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा कोई एक्सप्रेशन होता, ठीक है, इन दैट केस dy d थीटा क्या हो जाएगा ना, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, यानी tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू a by b। ठीक है, ये tan थीटा इज इक्वल टू 0 कर, क्यों, अगर मैक्सिमम मिनिमम चाहते हो तो tan थीटा अगर a by b हो जाए तो ये a b और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो देयरफॉर y मैक्स या मिनिमम क्या हो जाएगा a sin थीटा, तो a इंटू साइन थीटा मतलब a by दिस प्लस b cos थीटा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है तो प्लस माइनस अलाउड होता है, तो देयरफॉर वी लाइक प्लस। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है इसी रेंज में लाई करेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ना 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a का b का वैल्यू 1 हो गया इस केस में और a का वैल्यू हो गया म्यू, दैट्स द पॉइंट। इन दिस केस क्या हो गया, a इज इक्वल टू म्यू एंड b इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर f मिनिमम हो गया म्यू mg बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज द एंगल। एंगल क्या अप्लाई किया जाए, है ना, तो tan थीटा क्या है a by b, तो a हो गया म्यू, b हो गया 1, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ,
that is nothing but theta. यानी जो उस दिन हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था, उसी एंगल पे अगर फोर्स लगाओगे, इन दैट केस क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा फोर्स. कितना हो जाएगा मिनिमम? ये वाला mg by √1 plus force. तो 2-3 आंसर्स मुझे दिख रहा है अभी. आंसर्स आए थे यही वाले. यू आर राइट, यू आर राइट. ठीक है, आई होप यू हैव डन दिस पार्ट. अभी ये वाला पार्ट वो अलग बात है कि इसको करने का ट्रिगोनोमेट्रिक तरीका भी है, इसको करने का ट्रिगोनोमेट्रिक तरीका भी है, बट मैंने उसको अवॉइड किया. क्यों? कैलकुलस ही है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं. तो लाइक है ना, दैट शुड बी डन. ठीक है, चलो. सो दैट वाज अबाउट योर मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम फोर्स. ये थे पुल, ये थे पुल. अब मैं जानना चाहता हूं कि पुश में क्या होगा. पुश के टाइम क्या होगा, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो. So now let's say we are pushing this body at an angle of theta, or mu is equal to tan theta, that you already know, angle of repose, etc. Or when f minimum, theta given है, theta is not in our hands, theta is given. So f minimum required to move the body. ये मास m है, यानी ये हो जाएगा mg. Dhruv Sharma is already given, and that is mu mg by √1 minus mu square. एंगल के टर्म्स में नहीं दिया, थीटा भी तो आएगा. इस बार थीटा गिवन है, थीटा मेरे चॉइस का नहीं है, तो आंसर में थीटा भी आएगा बेटा. Okay, Aditya has given mu mg by cos x minus sin x. x मतलब थीटा ही मीन कर रहे हो. This is what probably you mean. चलो मैं अटेंडेंस तो बात कर लेता हूँ. हाँ जी, यानी अब क्या करेंगे ना, एज यूजुअल, तो लाइक दिस इज f cos थीटा, दिस f sin थीटा, यानी f cos थीटा will be equal to this time will be equal to mu into mg plus f sin theta. यानी f will be equal to mu mg by cos theta minus mu sin theta. ठीक है, अच्छा. अब देखो, जो मैं जिस चीज के लिए मैंने इसको ये किया था, इज दैट, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल I hope you like the language of the question. Is it possible that this is not possible? I hope I managed to confuse you a little bit by the language of the question. Want it to be a little mischievous.
Okay, that's right. Dhruv Sharma said कि it is not possible when mu is greater than tan theta. देखो हमने जो वैल्यू लिया है, ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव आएगा तो ही एक्सेप्ट करेंगे, है ना? आंसर पॉजिटिव आएगा तो ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी ऐसे नहीं कि जगमचे हो जाएगा. नो, वी हैव टू एंश्योर दैट दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो यानी cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है ना? या अगर फाई के टर्म्स में लेते हो, फाई के टर्म्स में अगर लेते हो, इन दैट केस sin फाई माइनस म्यू cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0. सॉरी, cos फाई. वो डिपेंड करता है एंगल वर्टिकल से ले रहे हो हॉरिजॉन्टल से ले रहे हो, हार्डली मैटर्स. तो यानी म्यू शुड बी लेस देन tan फाई, यानी फाई शुड बी ग्रेटर देन थीटा. देख रहे हो यहाँ पे भी एक और इंटरेस्टिंग केस आ गया जो हमने कल, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक हाँ फ्राइडे, कि जब हमने इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रखा था और हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया, तो एक केस ऐसे भी आया था कि तुम जितना मर्जी फोर्स लगा लो, बॉडी मूव नहीं कर सकता. एट दैट टाइम भी तुमको लगा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं फोर्स ज्यादा लगा दूंगा तो कभी ना कभी तो ऊपर चला ही जाएगा. तो उसके लिए देखो एक बार याद करो, तो हमने डिस्कस किया था कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, ये सिर्फ लेके जाने में मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ ये सरफेस पे दबा भी रहा है. अगर मान लो सरफेस को कुछ ज्यादा ही दबा दिया, तो इन दैट केस उसको लेके जाने वाला जो फोर्स है हो सकता है कम पड़ जाए. तो इसलिए कंडीशन आया था उस दिन, और आज भी वही कंडीशन आ रहा है. तुमने जरा खुद सोच के देखो, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है वॉलेट टाइप. अब मान लो तुमने फोर्स ऐसे लगाया, तुमने ऐसे फोर्स लगाया बड़े आराम से, देखो मूव कर, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर मान लो तुमने फोर्स यूं लगा दी, अब देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा. क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट वर्टिकल लगा रहा हूँ. देखो वर्टिकल तो खैर ये हो गया, बट जो मैं अभी लगा रहा हूँ ये भी ऑलमोस्ट वर्टिकल ही है. ये देखो ऐसे. तो यानी इसका ज्यादा कंपोनेंट क्या कर रहा है, सरफेस को दबा रहा है, क्रिएटिंग लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फ्रिक्शन. और जो हॉरिजॉन्टल उसको चलाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो ऑलमोस्ट वर्टिकल है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका बहुत कम है, so that will not be able to overcome the extra friction created, yeah, very high friction created because of very large amount of pushing force which is increasing the normal action very artificially. इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि एंगल को इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे. तो जितना एंगल ज्यादा करोगे फाई, या उल्टा कहना चाहते हो जितना कम एंगल करोगे थीटा, उतना क्या होता है, प्रेसिंग फोर्स कम हो जाता है और चलाने वाला फोर्स बढ़ जाता है. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प अस. इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि ना ही चले, जस्ट बिकॉज यू गॉट एन आंसर डज नॉट मीन कि चलेगा. ये तभी चल पाएगा ओनली व्हेन फाई इज ग्रेटर देन थीटा. या कह सकते हो 90 माइनस 5, मतलब के हिसाब से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. ठीक है ना? तो फाई इज ग्रेटर देन थीटा होगा तो ही कर सकते. यानी यहाँ पे भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज प्लेइंग इट्स ओन रोल. अगर मैं ऐसे पुश करता हूं, इन दैट केस पुश ही नहीं होगा. अगर फोर्स को कुछ ज्यादा ही क्लोज टू द नॉर्मल कर दिया, यानी अगर फाई का वैल्यू कम कर दिया, तो नहीं चलेगा. यानी फाई लेस देन थीटा implies object does not. ठीक है, चलो, यानी एंगल इज प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल. पिछले बार भी एंगल ने प्ले किया रोल, उसमें भी था और इसमें भी. चलो ठीक. So that was about your force on a horizontal ground. Today we'll talk about. Today we're going to talk about friction when two blocks are there. ठीक है? देहम ने भी ऐसे कुछ रिलेशन बताया.
दैट इज व्हेन cot थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एंड सो ऑन। ठीक है, वही मैंने तो थीटा का रिलेशन डायरेक्टली दे दिया, दे हमने थोड़ा सा उस रिलेशन को अलग तरीके से, इट्स ओके। चले, अच्छा अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन टू ब्लॉक सिस्टम। पहला क्वेश्चन, mu 0, mu is equal to 0.4 and a force has been applied here, force is equal to T। तो तुमको ग्राफ बनाना है एक्सेलेरेशन की, दोनों के एक्सेलेरेशन वर्सेस T और फ्रिक्शन वर्सेस T। जल्दी ग्राफ बनाओ। एक ही ग्राफ के एक्सेलेरेशन में दोनों को प्लॉट करना है, 3 kg का भी एक्सेलेरेशन प्लॉट करना है, 4 kg का भी एक्सेलेरेशन प्लॉट करना है, दोनों को करना है एक ही ग्राफ के अंदर। In the meanwhile, you can draw the graph and send me at that 9555 number. तब तक मैं एक बार फटाफट अटेंडेंस ले लेता हूँ। One is missing, तो ये देवव्रत तेवत्या, are you there? देवव्रत तेवत्या, उसी को आपसे मान लो फिर। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। देखो, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे तो दोनों के कंबाइंड एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। तो इनिशियली पता क्या होगा, इनिशियली अगर दोनों का डायग्राम देखोगे तो ये आ रहा है। एंड आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट द फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि हमें तो एक्सेलेरेशन निकालना, तो एक्स एक्सिस का फिनोमेना। तो इनिशियली दे आर गोइंग टू गो टुगेदर, इनिशियली दे आर गोइंग टू गो टुगेदर। एंड बाय द वे, इसमें एक प्रिजम्पशन है, दैट इज ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, वो बहुत लंबा सा, नहीं तो तुमको लगेगा कि अगर मान लो नीचे वाले को खींच दे तो ऊपर वाला तो पीछे से गिर जाएगा, वो सब चीजें नहीं। द लोअर ब्लॉक इज अ वेरी लॉन्ग वन, देन उसके ऊपर रिलेटिव स्लिपिंग हो सकता है, बट पीछे से नहीं गिरेंगे, और गिरेंगे भी तो काफी देर बाद गिरेंगे, हम तो थोड़ी देर के लिए
These are some of the presumptions. चलो तो उसी को लेके आगे बढ़ते हैं. Next is that initially they're going to go together the same acceleration. यानी f is equal to 3a and t minus f is equal to 4. यानी बेसिकली 7 है तो यानी a तो आ गया इक्वल टू t by 7. a आ गया t by 7. But this is only initially. ये इनिशियली क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि समय के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा. देखो बढ़ रहा है और फ्रिक्शन भी तो बढ़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन भी तो है 3a by 3a मतलब t by 7. तो with time acceleration and friction both are increasing. ठीक है ना ये चीज. लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शन कैनॉट इंक्रीज इनडेफिनेटली. इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? एफ मैक्स हो जाएगा इक्वल टू म्यू इंटू 3 इंटू 10. दैट इज 12 न्यूटन बेसिकली. ये कभी ना कभी एफ इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 3t by 7 यानी t इज इक्वल टू यानी 28 सेकंड तक क्या होगा कि इन दोनों के सरफेस के जो बीच का फ्रिक्शन है वो वैल्यू बढ़ते 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 उसके जो लिमिटिंग वैल्यू है वो निकल जाएगा. एफ मैक्स म्यू mg. m बोलते ऊपर वाला मास, नीचे वाला मास का कोई फ्रिक्शन में रोल नहीं है मैक्सिमम फ्रिक्शन में. यानी कितना हो गया 12 न्यूटन. वो 12 न्यूटन हमें टाइम कितना लगेगा? फ्रिक्शन तो इतना है तो उसका टाइम कितना हो गया 28 सेकंड. यानी इससे क्या कंक्लूजन हो गया? टिल 28 सेकंड्स द बॉडीज आर गोइंग टू गो टुगेदर. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐसे हो जाएगा कि नीचे वाला फास्ट ऊपर वाला स्लो. पर जाएंगे ऊपर वाला ब्लॉक आगे ही. क्यों? याद करके देखो मैंने क्या बोला था, रिलेटिव मोशन कैसे जज करोगे? फ्रिक्शन गायब कर दो. अगर मैं इस फ्रिक्शन को गायब कर देता हूं थोड़ा देर के लिए जस्ट टू एनालाइज, ऑब्वियसली फ्रिक्शन गायब तो नहीं करता हूं. अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं और नीचे वाले ब्लॉक को पुल करता हूं तो क्या होता है ना, ऊपर वाला ब्लॉक एज इट इज रह जाएंगे और नीचे वाले ब्लॉक को जो पुल कर रहा है वो ऐसे आगे चला. यानी अगर फ्रिक्शन लेस कर देता हूं तो दैट केस ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि पीछे जा रहा है, जाएगा तो आगे ही. लेकिन इस केस में मैंने फ्रिक्शन लेस लिया है तो उसका स्टेटस क्या है? इट विल रिमेन एट रेस्ट. लेकिन हमें रेस्ट और मोशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो रिलेटिव से मतलब है. तो रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक जो कि सामने जा रहा है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट आई हैव मेड, द अपर ब्लॉक इज मूविंग बैकवर्ड्स. फिर से दोबारा ध्यान से सुनना. अगर मैं बाहर से देख रहा हूं सिस्टम के तो अगर मान लो फ्रिक्शनलेस होता तो मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे देखता. दिस इज द ट्रू स्टेटस दैट द अपर ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, द लोअर ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग एंड मूविंग अवे. दिस इज द स्टोरी ऑफ द फ्रिक्शन. तो अगर मैं इसको फ्रिक्शनलेस बना देता हूं तो रिलेटिव मोशन का क्या डिस्क्रिप्शन होगा? द अपर ब्लॉक इज मूविंग बैकवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द लोअर. ठीक है, लोअर ब्लॉक नीचे जा रहा है और अपर ब्लॉक स्टेशनरी है लेकिन इसके रेस्पेक्ट पीछे जा रहा है. तभी तो फ्रिक्शन क्या करता है? उस रिलेटिव मोशन जो बैकवर्ड हो रहा है उसको रोकता है, फ्रिक्शन आगे कर देता है. एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द फ्रिक्शन फॉरवर्ड. लेकिन इसका एक मैक्सिमम वैल्यू भी है, इसका एक मैक्सिमम वैल्यू भी है और वो 12 न्यूटन. मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन. तो वो अचीव होते हुए क्या टाइम लगता है? 28 सेकंड. 28 सेकंड के बाद हम तो अपना फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन तो इसके बाद और बढ़ नहीं पाएगा. एंड देयरफॉर 28 सेकंड तक क्या होगा? दे गो टुगेदर. आफ्टर 28 सेकंड्स क्या होगा? एट t greater than 28 seconds the two move separate. लेकिन एक चीज है कि फ्रिक्शन का वैल्यू इसके बाद फिक्स हो गया. क्यों? काइनेटिक जो हो गया. So therefore friction now is fixed is equal to what? Mu mg वही वाला 12 न्यूटन. And therefore acceleration of the 3 kg block will be also fixed and that is equal to 4 meter per second.
लेकिन एक्सेलरेशन तो 4 kg ब्लॉक फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना फोर्स बढ़ाता ही जा रहा हूँ टी। फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा तो 12 आ गया, तो ये तो टी है, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा टी माइनस 12 अपॉन मास 4, तो इज इक्वल टू टी बाय 4 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये भी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इन सबको यूज करके ग्राफ बनाना है। तो फ्रिक्शन कैसे वेरी कर रहा है? ऐसे कब तक? 28 सेकंड, और उसके बाद फिक्स हो। कितने में फिक्स हो गया? 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, एक्सेलरेशन पहले कंबाइंड बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? टी बाई 7 है। कब तक? 28 सेकंड तक। तो एक्सेलरेशन टी बाई 7 है, 28 सेकंड। ठीक है, यानी ए इनिशियली A3 is equal to A4 is equal to T by 7 इनिशियली। उसके बाद क्या होगा? एक काम करो, ऐसे कंजेस्टेड होता है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है? A3 is equal to A4 is equal to T by 7। उसके बाद क्या होगा? एक का एक्सेलरेशन फिक्स हो गया, कितने पे? कितने पे फिक्स हो गया? 4 पे। ये देखो ये 4 है, और दूसरे का और तेजी से बढ़ता है। इसका हो गया 4, दूसरे का तेजी से बढ़ेगा। तो एक काम करोगे, मुझे बताओ थीटा क्या होगा, या एक काम करो tan थीटा बताओ क्या होगा, और tan फाई क्या? हाँ जी, अब ये है क्वेश्चन। ग्राफ देख लो अच्छे से। tan थीटा और tan फाई का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड यू, इससे काफी कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाता है। मुझे tan थीटा और tan फाई का वैल्यू बता दो। बाय द वे ये तो खैर 28 सेकंड है, क्योंकि 28 सेकंड तक दे गो टुगेदर, 28 सेकंड्स। तो इनिशियली दे गो टुगेदर, यानी टिल 28 seconds the bodies move together. Already got some answers. Tan theta आ गया 1/7, और दूसरा tan फाई हो गया 1/4। मैं एक काम करूं, क्योंकि ये 80 ग्राफ है ना, तो लेट मी गेट दी वैल्यूज फ्रॉम दिस। ये देखो शुरू में तो a is equal to t/7, तो a is equal to t/7 वाला इक्वेशन है। मेरी स्लोप क्या होगा? 1/7, तो therefore tan theta is equal to 1/7। बाद में जो इसका इक्वेशन है, ये एक्चुअली a4 का इक्वेशन। A4 का इक्वेशन है कितना? t/4 माइनस 12 माइनस 3 बेसिकली, 12/4 है मतलब। So what is the slope? 1/4. So therefore tan phi is equal to 1/4. Check लो अच्छे से। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ये बड़ा फंडामेंटल था, इसलिए मैं इस पे दो चेंजेस कर रहा हूं। Change number one is that this time let me introduce friction.
इस बार इसलिए एक फ्रिक्शन का ग्राफ बनाना है जिसमें दोनों फ्रिक्शन इकट्ठे प्लॉट करना और एक्सेलरेशन का भी एक ही ग्राफ में दोनों का प्लॉट करना। अच्छा, बिकॉज नोबडी आस्क्ड एनीथिंग देयरफॉर मैं मिटा रहा हूं। आई होप पहला क्वेश्चन था, वार्म अप क्वेश्चन था, तो सबको समझ में आ गया होगा। देख लो अच्छे से, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है जो भी हम लोग कर रहे हैं क्लास में, खासकर फ्रिक्शन को समझने के लिए। इस बार तो इनफैक्ट शुरू में मूवमेंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जब तक फ्रिक्शन ओवरकम ना हो तो इन दैट केस तो सिस्टम में मूवमेंट ही नहीं होगा। यानी इसमें 3 फेज आएगा। पहली बात तो रेस्ट वाला फेज, पूरा सिस्टम एट रेस्ट। क्यों? ये फ्रिक्शन तो सॉरी ये फोर्स तो धीरे धीरे रिजनरेट होगा, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ जो मौजूद है फ्रिक्शन इतना, तो उसको जब तक ओवरकम ना करेगा तो कुछ होने वाला है। यानी क्या होगा, थोड़ी देर तो ये रहेगा। यानी एक्सेलरेशन शुरू में तो तीनों का जीरो आएगा। जहां तक फ्रिक्शन की बात है, क्योंकि फोर्स टाइम के बराबर है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा, तो दैट विल हैपन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जितना तुम फोर्स लगा उतना ही फ्रिक्शन होगा, और हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, टी, यानी 5 सेकंड बाद 5 न्यूटन, 6 सेकंड बाद 6 न्यूटन, 10 सेकंड बाद 10 न्यूटन, 15 सेकंड बाद 15 न्यूटन, इस तरीके से। दैट्स व्हाट F मींस, है ना? तो therefore 40 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन जनरेट होना स्टार्ट, देखते इसका फ्रिक्शन अब फिक्स हो जाएगा। ये कब होगा अभी आता हूं उस पर, पहले चीजें डिसाइड कर ले। जहां तक F2 की बात है, सर ये F2 का था, ये जो है ना ये F2 का था, और उसके बाद F2 का फिक्स हो। जहां तक F1 की बात है, F1 तो स्टार्ट ही इसके बाद होगा। F1 को तो पता ही नहीं चल रहा इनिशियली। क्यों? जो भी फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ वो यहीं पे ऑब्जर्व हो जा रहा है। इसलिए F1 को तो तब पता चलेगा कि हाँ मैं भी हूं, कब? जब रिलेटिव मोशन सॉरी जब बॉडीज दोनों मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराने वाला एक ही फोर्स है, और वो है फ्रिक्शन। दैट इज अ चेंज, है ना? तो वो चीज F2, तो F1 यहां से स्टार्ट होगा। इसलिए F1 का ग्राफ मैं एक काम करता हूं, मैं राइट से ड्रॉ कर देता हूं जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट। F1 तो स्टार्ट ही यहां से, और उसके बाद बढ़ेगा। तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? तो F1 मैक्स इज इक्वल टू म्यू mg, और F2 मैक्स is this mu mg, तो 0.2 into 80 यानी 16 न्यूटन। ये तो पता चला ना। तो यानी ये मैं काम करता हूँ, फ्रिक्शन का ग्राफ कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर दिया मैंने।
ठीक से बना देता हूँ। अभी हमने निकाला कि F1 मैक्स हो गया 15 न्यूटन, तो यानी ऊपर तक नहीं जा पाएगा। ये हो गया टिल द टाइम द बॉडीज आर गोइंग टुगेदर। या ये अभी टाइम निकाला नहीं, अभी टाइम निकालता हूँ। ये हो गया F2 मैक्स इज 16 न्यूटन और F1 मैक्स आ गया देखो। हाँ, टाइम इज नाउ क्राइटेरिया। टाइम का क्राइटेरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो F2 तो उतना ही होगा जितना T है शुरू में। तो F2 मैक्सिमम वैल्यू क्या 16 न्यूटन, यानी 16 सेकंड। ये तो हो गया 16 सेकंड। उसके बाद F1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियली क्या होगा, तो T between something to 16 seconds the bodies move together। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, T माइनस 16। अगर मैं ओवरऑल सिस्टम लेता हूं तो ये T हो गया और ये 16 हो गया। बीच का फ्रिक्शन अभी इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है, क्योंकि शुरू में तो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। तो दोनों इकट्ठे का जा रहा है, तो दोनों को कंबाइंड मास लेके स्टडी करना इज बेटर। तो यानी कंबाइंड मास हो गया, तो इन दैट केस फोर्स आ गया T और एक 16 बस। ये बीच वाला कैलकुलेट करने की फिलहाल जरूरत नहीं, करूंगा तो कैलकुलेट जरूर, बट फिलहाल जरूरत नहीं। तो यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक्सेलरेशन। या चलो एक काम करो, A3 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू T माइनस 16, ओवरऑल फोर्स T और इधर हो गया 16, 16 न्यूटन बाय 8। बाय द वे इस 3 के जो कौन एक्सेलरेट करा रहा है, फ्रिक्शन ही तो करा रहा है। यानी अगर मैं इसको F1 लिखता हूं तो F1 क्या करा रहा है, ना इज इक्वल टू 3 इंटू A3। अकेला फ्रिक्शन, ऊपर वाला फ्रिक्शन F1 अकेला 3 kg को एक्सेलरेट करा रहा है। F1 इज इक्वल टू 3 kg इंटू A3, और A3 अभी निकाला होगा, 3 कर दो, यानी 3 by 8 T माइनस 6। लेकिन F1 का मैक्सिमम क्या है, 15 न्यूटन। तो F1 reaches maximum of 15 Newton when 3T by 8 minus 6 is equal to what, 15। तो 15 से 21 हो गया, 21 इंटू 8 तो 56, यानी T is 56 सेकेंड्स। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56 सेकेंड, और 56 सेकेंड तक बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा इसका ना, 15 न्यूटन फ्रिक्शन।
अच्छा अब देखो फ्रिक्शन का ग्राफ तो हो गया, अब एक्सेलरेशन पे आ जाओ। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 3/8 t minus 6, दैट इज आफ्टर 16, यानी 16 सेकंड तक तो कुछ भी नहीं। उसके बाद ये आ गया थोड़ी देर बाद ऐसे, और उसके बाद एक का तो फिक्स हो जाएगा, किसका? ऊपर वाले का, और नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, स्लो बढ़ जाता है। तो ये तो हमें पता चल चुका है 56 सेकंड तक है, यानी फॉर t लेस देन 16 और इक्वल टू 0, a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, t बिटवीन 16 एंड 56 क्या होगा? They are going to get together, तो a3 इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू t माइनस, ये फ्रिक्शन अब फिक्स हो चुका है, ये फ्रिक्शन अब फिक्स हो चुका है कितने में? 16 न्यूटन, 0.2 इंटू 18 तो 16, यानी t माइनस 16 अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या? 5 प्लस 3 8, तो ये जो पहले की तरफ था। अब आ जाओ लास्ट, t ग्रेटर देन 56 सेकंड, तब क्या होगा? t अगर ग्रेटर देन 56 सेकंड्स होता है, एकदम जगह नहीं था, तो t अगर ग्रेटर देन 56 सेकंड्स होता है तब तो a3 तो फिक्स हो चुका है। a3 a3 किस पे फिक्स होगा? 5 पे। क्यों? क्योंकि a3 कौन करा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू क्या? 15 न्यूटन। F1 वाले का मैक्सिमम 15 न्यूटन, यानी 3 kg का मैक्सिमम क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो सकता है। a3 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ये a3 का आ गया। जहां तक a2 की बात है, सॉरी a5 की बात है, हमने तो फोर्स t लगा रखा, इसके बाद t ग्रेटर देन 56 में अब तो सब कुछ काइनेटिक, यानी ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे, इसके वाले पीछे, और वैल्यूज डेफिनेट है। तो मैं लिखूंगा a5 इज इक्वल टू t माइनस ये वाला फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन अब फिक्स हो चुका है, कितना? म्यू एम जी। अब तो सब अलग अलग चल रहा है, यानी म्यू एम जी मतलब हो गया 15, ये भी फिक्स हो चुका है 16, तो माइनस 16 अपॉन मास इज 5 kg। t by 5 माइनस 31/5, ठीक है। Now that is the end of the long question discussion, यानी अगर मैं अब पूछूंगा थीटा और फाई तो क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू और tan फाई, तो tan थीटा क्योंकि 80 ग्राफ का इक्वेशन है इस वाले टाइम, तो t/8 यानी tan थीटा हो जाएगा 1/8। जहां तक tan फाई की बात है वो a वर्सेस t इससे आएगा, है ना, क्योंकि a वर्सेस t लिया मैंने, तो a वर्सेस t का तो इक्वेशन ही है, यानी 1/5 यानी इज इक्वल टू okay, just now just given the right answer, that was about the slope, I mean 1/8 and 1/5 बिल्कुल सही दिया है। इधर मेरे पास सोमदत्त ने क्वेश्चन पूछा है दैट एक बार F1 वाला फिर से बता दो इक्वेशन, F1 वाला इक्वेशन, नहीं F1 वाला तो कोई इक्वेशन नहीं है, इट्स अदर एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, उससे F1 निकल जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वेशन आ चुका है व्हेन दे आर मूविंग टुगेदर, जब ये दोनों टुगेदर मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन आ चुका है, दैट इज t/8 - 2, ठीक है। और इसके ऊपर फ्रिक्शन जो चाहिए वही फ्रिक्शन इस पे लगेगा,
थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, बट देन यू कैन इजीली मैनेज टू डू इट। तो ये F1 का वेरिएशन है, ये टुगेदर वाले की बात। Now this question is almost like a dictionary kind of a question. इसमें सारा concept अच्छे से cover हो जाता है. Therefore, now look at it very thoroughly, and based on this, I will give you another question to solve. But before that, मैं थोड़ा हट जाता हूँ. अगर किसी को नोट करना है, कुछ पूछना है वगैरह, वैसे तो मैंने सब कुछ लिख के रखा है, जिससे मैंने जो चीजें कंफ्यूजन सारा लिख के रखा, वो चेक कर सकते. Yes, anybody has a question in this? Okay, let me make a quick change in this particular question. A quick change, and that is, सपोज मैं कहता हूं कि नीचे वाला फिर से फ्रिक्शनलेस कर देता हूं. F तो एज यूजुअल T है, 4 kg, 2 kg. इसका तो चलो म्यू 0 है, नो प्रॉब्लम. इसमें दो म्यू है, म्यू L इज इक्वल टू 0.4 एंड म्यू K इज इक्वल टू 0.3. चलो 0.2. तो क्या चेंज हो जाएगा बताओ. टू kg 4 kg F इज इक्वल टू T. ड्रॉ करना यही, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रिक्शन ड्रॉ करना. चलेगा. देखो आज वाले जो क्लास के जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, ये थोड़ा सा लंबा था, कॉम्प्लिकेटेड था, काफी कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है. तो मैंने एक पर्टिकुलर ट्रैक फॉलो करके इसको सॉल्व किया. इसका मेथोडोलॉजी अच्छे से समझ. अगर नहीं आता तो एक बार जो मैंने अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो दोबारा देख लेना. लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है. एक एक चीज बिल्कुल फ्लो के तरीके से फटाफट आ जाना चाहिए माइंड में व्हेनेवर द क्वेश्चन इज. ठीक है. तो इसमें भी फ्रिक्शन और उसका डायग्राम बनाना है. तो पहले तो दोनों साथ चलेंगे. तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों के लिमिटिंग और काइनेटिक के वैल्यूज बता देता हूँ. तो म्यू एल के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 0.4 इंटू 20 यानी 8 न्यूटन, और इसके हो जाएगा, ये हो गया एफ एल, और ये हो जाएगा 4 न्यूटन एफ के. तो अगर 4 न्यूटन फोर्स होगा, तो इन दैट मतलब 8 न्यूटन फोर्स अगर लिमिटिंग होगा, इन दैट केस इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 होगा. इसलिए 4 तक तो दोनों इकट्ठे चलेंगे. लेकिन जैसे ही 4 पार होगा एक्सेलरेशन, अब कब होगा मुझे नहीं पता, वो भी मैं निकाल देता हूँ शॉर्टकट से. देखो, अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 हो सकता है इसका, कैसे मैं 8/2 4 मैक्सिमम, यानी कंबाइंड भी 4, तो यही मैक्सिमम कंबाइंड एक्सेलरेशन हो गया. तो कंबाइंड एक्सेलरेशन अगर 4 होता है तो उसमें फोर्स कितना चाहिए, तो दोनों कंबाइंड कर लो. 4 + 2 6 इंटू कंबाइंड एक्सेलरेशन 4, तो 24 न्यूटन चाहिए. तो 24 न्यूटन का होगा 24 सेकंड का, 24 सेकंड तक फोर्स आता. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो इसका फ्रिक्शन एकदम से 4 हो जाएगा, देन इसका एक्सेलरेशन एकदम से ड्रॉप करके 2 हो जाएगा, यानी एक का तो ड्रॉप करके 2 होगा, और उसके बाद फिक्स हो जाएगा. ये 2 है, उसके बाद इसका फिक्स हो जाएगा. दूसरे का एक्सेलरेशन एकदम से थोड़ा बढ़ेगा, और फिर और तेजी से बढ़ेगा. मेरे पास थोड़ा स्लोप मैंने कम कर दिया. चलो कोई नहीं, थीटा और फाई निकाल लेना, उससे स्लोप पता चल जाएगा. और इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा. अब देखो कैसे ना, अगर मैं देखता हूं तो ये सारी चीजें 24 सेकंड बाद हो रहा है. एट टी इक्वल टू 24 प्लस
क्या होगा ना, ये फोर्स 24 हो गया, मैं नीचे वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये फोर्स 24 न्यूटन हो गया, फ्रिक्शन एकदम से 8 से घट के 4 हो गया, तो 24 माइनस 4 यानी इसके ऊपर 20 न्यूटन, यानी एकदम से इसका जंप करके 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही ऊपर वाला एक्सेलरेशन घट जाएगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, तो यानी नीचे वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो एकदम से एक्सेलरेशन बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। अब एक काम करो, t लेस देन 24 में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t by 6 and friction will be equal to 2 into t by 6 is equal to t by 3. You get t less than 24. t greater than 24 में क्या होगा, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन फिक्स, a2 का हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a4 का हो जाएगा t माइनस, t तो है ही है, और फ्रिक्शन जो है घट के हो गया 4, t माइनस 4 बाई 4, यानी 1 बाई 4 t माइनस 1। देखो tan थीटा क्या आ गया, 1 बाई 6, तो इससे ही पता चल रहा है that tan theta is equal to 1 by 6, यहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जहां तक फ्रिक्शन की बात है, फ्रिक्शन 24 सेकंड तक बढ़ते बढ़ते हुआ 8 न्यूटन, और एकदम से उसके बाद घट के 4 न्यूटन, और फिर ये फ्रिक्शन को, तो tan थीटा इसके हिसाब 1 by 6 आ गया इसके हिसाब से, और tan phi इसके हिसाब से आएगा a4 के हिसाब से, क्योंकि ये है a2, ये है a4, और यहाँ पे तो a2 और a4 बराबर ही, उसके बाद एकदम से जंप, तो tan थीटा 1 by 6, tan phi कितना हो जाएगा 1 by 4। I hope you are now getting all the points of it. Jasraj saying 1 by 5, नहीं 1 by 5 नहीं आएगा, 1 by 4 आएगा, ठीक है। चलो, so that's the end of the discussion for the day. लेकिन आज जो हमने डिस्कस किया ये नॉट ओनली इंपॉर्टेंट था, बट ये जिस तरीके से मैं फ्लो में कर रहा था उसी फ्लो को फॉलो करना बहुत जरूरी है, कि एक के बाद एक के बाद एक कैसे कैसे देखो कंक्लूजन करते जाओ। तो मेरे ख्याल से बाकी दिन का मुझे नहीं पता, बट आज के जो डिस्कशन हुआ उसका वीडियो हो सके तो एक बार दोबारा देख लेना। आई वुड सजेस्ट दैट टू मोस्ट ऑफ यू। अगर मान लो एक एक पॉइंट सब कुछ क्लियर है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी हमने क्वेश्चंस किए थे, और अगर तुम सारे क्वेश्चंस खुद कर पाए then it's a different matter, then तो चलो इतना इसका मतलब जरूरत नहीं है, that means you already picked it up sufficiently. But other than that situation, अगर मान लो कहीं पे भी अटके थे, क्योंकि मैं तो आज पूरा फ्लो में कराता गया, मैं आज ज्यादा रुका भी नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो बार बार रुकेंगे तो थोड़ा सा उसका फ्लो खत्म हो जाता है, इसलिए मैं फ्लो में पूरा A to Z क्वेश्चंस करता गया इंक्लूडिंग दिस। ये तो इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी में कर दिया, बट आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एग्जैक्टली आई टैकल्ड इट एंड अप्रोच्ड इट। तो अगर अप्रोच क्लियर हो जाए तो ये सब क्वेश्चंस कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट ही हो जाता है। और देखो एक क्वेश्चन के अंदर इतने सारी चीजें थोड़ी पूछेंगे कि A वर्सेस टीवी ग्राफ बताओ, फ्रिक्शन वर्सेस टीवी बताओ, फिर तुम्हारा जो है अलग अलग टाइम के एनालिसिस भी करो, इस रेंज में क्या होगा बताओ, उस रेंज में बताओ क्या होगा, इतना कुछ थोड़ी इकट्ठे पूछेंगे एक दो चीज, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विल कैरी ऑन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटे। एक और साइड होना सर, साइड तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वीडियो से देख लो, लास्ट में अगर कॉपी भी करना है तो हो गया सर, लेना है तो ले लो, ले लिया सर। हाँ, तो मैंने सारा कुछ डाल थैंक दिया यू सर। ठीक है ना। चलो ओके बेटे, थैंक यू बेटे, ओके।